पूछा था ना खाली मशीन अकाउंट तो बनाया है ना। देखो आंसर चेक करो होमवर्क का, पे अटेंशन ध्यान दो। अभी टू कैश बैंक 50,000 परचेज है, then buy depreciation 1250 and buy balance CD 48,750. That's your first year. Second year, two balance BD 48,750. You have bought one, so two cash bank 25. Buy depreciation 6875 and buy balance CD 66875. 66875. Is that right? Then next one is third year, two balance BD 66875. You have sold one, so 1st July को buy depreciation 1250. Buy depreciation 1250. Buy cash bank 40,000. मिला? Buy loss on sale 2,500. 2,500 is your loss. Got that? Buy depreciation again 2,500 and buy balance CD 20625. Your last answer is 20625. Is that right? डेप्री अकाउंट पूछा नहीं था, बनाया तो टू मशीन और बाय पीएल, खाली मशीन अकाउंट ही पूछा है। चलो करें आगे। लिसन नाउ, व्हाट हैपेंड? फोकस फोकस। सम नंबर 4 इधर ये। ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 4, page 101, sum number 4. Majority of the colleges, they ask FIM method only, which we are going to do all the different sums today. All sum have some or the other small different element, so better focus. Sum number 4, okay? Except for Podar and MM. Podar and MM RBM पूछ लेता है, but बाकी colleges they go for FIM. बट लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से देखा गया दोनों में FIM ही आया, उदार में भी और NM में भी। वो बिगड़ सकता है कभी। अभी देखा ना यूनिट टेस्ट में कैसा है, 2 साल का लेवल और ये लेवल में बहुत फर्क। चलो गाइस, सी सम नंबर 3, सॉरी सम नंबर 4. That is quite. Ankita company, let's summarize first. Ankita company, Solapur, bought a machine worth 25,000 on 1st April 04 and paid 5,000 on its installation. तो 25 का मशीन है और 5 का इंस्टॉलेशन है, तो what is the total cost of machine? 30,000, right? And you bought it on 1st April 04. So that falls in which year? 4-5. Is that right? The company depreciated the machine at 10% on original cost every year. That's your hint. That if you are depreciating it at 10% on original cost, what is the method they are asking? FIM 10%. OCM, FIM, SLM are all one and the same. Is it clear? Then 31st March, that's your year end. On 1st October 2006, falls in which year? 6-7. A part of the machine was sold for 7,000, whose original cost was 10,000. तो यहाँ पे पूरा मशीन नहीं बेचा है, पार्ट ऑफ द मशीन बेचा है। क्या बेचा है? पार्ट ऑफ द मशीन। The company purchased a new machine for 20,000 on the same day from Rocky Machines. Why have they given this name Rocky Machines? क्रेडिट पे खरीदा है, पार्टी का नाम दिया है और कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है। That means you have bought it on credit. Is that clear? So if you summarize it, your first year, I think it was year 4-5. What is happening in the year 4-5? Can I say there is one purchase? Hello? What about 5-6? Was there any data related to 5-6?
चेक. कुछ डेटा था 5-6 का, था कि नहीं था? बोलो. 5-6 में कुछ भी हुआ है? डेप्रीसिएशन हुआ है, कुछ भी नहीं है. नो परचेज नो सेल, तो सिंपली डेप्रीसिएशन. गॉट दैट? हेलो. व्हाट अबाउट 6-7? There is one sale and one purchase. So it's a simple 3 transaction problem. One purchase, then no purchase, no sale, and then there is one sale and one purchase. Let's begin with the first year machinery account and depreciation. पहला ट्रांजैक्शन बताइए कौन से डेट पे होगा? 1st April 04. What will write to cash bank? How much? 30,000 की 25. 30,000, correct? Why 30? 25 plus 5. Installation will be added. Am I right? Hello. Working note 1. What is your year ending? 31st March. And what is the method? 10% FI. Year 1 I think there was just one purchase, and after that what do you do? Depreciation. Go for depreciation. So I think the date is 31st March 05. Correct? By depreciation. By depreciation. How many machines do we own? Just one, so let's name it M1. It's 30,000 का 10% for 12 महीना. agree? 12 महीना ना, अप्रैल से मार्च. So 3,000 आएगा. Is that right? Correct? So you get it to be 3,000. First year is over. कर लो balance. 31st March 05. 4 से तो चालू किया बराबर ना. 4-5 कर रहे हो. So balance is 27. Stop talking. Write fast. And in depre account you will have 2 machine. 27. And buy PNL. Alright, 3,000. Buy PNL 3,000. On 31st March 05. That was your first year. Straight and simple. Just had one machine and you depreciated it by 3,000 at the rate of 10%. Are you comfortable first year? समझ में आया? First year, just one purchase and depreciation. That's about it. What's happening in year 2? Nothing. The same. बैती गंगा. क्या करना है आपको वापस? Depreciation. 31st March 06. How much will be your depre for year 2? Can you guess? 3,000 ही होगा, right? Because you're having the same machine worth 30,000 and you have used it for 12 months. I think that is 3,000. Clear with that? Both the machines are sorry, worth there is just one machine, but both the years depreciation is same. That is 3,000 each, because you have used it for 12 months. पहले साल में तो 12 महीना ही था, दूसरे साल में ऊपर से टपका तो 12 महीना. और फिर करना है बैलेंस. बाय बैलेंस शीट 24. That's about year 2. और डेप्री में आएगा 2 मशीन एंड बाय पियानो.
31st March 06. 31st March 06. थर्ड ईयर मुझे बताओ, यू सोल्ड वन राइट, बट यहाँ पे क्या दिया है? देखो ध्यान से पढ़ो. 1st October 2006 द कंपनी सोल्ड अ पार्ट ऑफ द मशीन फॉर 7,000 whose ओरिजिनल कॉस्ट वाज 10,000. तो पार्ट बेचा है, पूरा नहीं. नाउ देयर आर सम मशीन्स व्हिच आर एक सा पूरा बनाया हुआ वन पीस. देयर आर सम मशीन्स व्हिच आर असेंबल्ड. असेंबल्ड मशीन्स में आप पार्ट भी बेच सकते. ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का काम का नहीं है. जैसे कि एक मशीन है जिसमें क्लॉथ में होता है, डाइंग मशीन है, टैनिंग मशीन है. तो डाइंग और टैनिंग साथ में असेंबल किया हुआ. डाइंग पार्ट अलग से निकाल के बेच भी सकते हो. जैसे कंप्यूटर है तो उसका मॉनिटर, उसका कीबोर्ड, माउस अलग अलग करके अटैच डिटैच करके निकाल सकते हो. इसका मतलब ये नहीं कि मशीन खराब हो गई. तो आपकी एक ही मशीन थी यहाँ पे 30,000. तो जो पार्ट बेचा होगा वो किसका होगा? इसका ही होगा, 30 का ही होगा. तो 30 में से आपने कितने का बेचा है? 10 का. तो जब भी पार्ट बेचते हो ना, तभी कैसे सोचना है? इमेजिन करो कि आपके पास दो मशीन, एक 20 का और एक 10 का, और आपने 10 वाला बेच दिया. इट्स सिंपल एज दैट. एंट्री तो वही है. एक मशीन हो कि कंबाइंड हो कि पार्ट्स हो, दोनों साथ में खरीदी होती तो भी यही मारता मैं एंट्री. तो 30 में से आपने 10 का बेच दिया. तो इमेजिन करो ऐसे कि एक नहीं थी, दो मशीन थे. एक 20 का था और एक 10 का था, जिसमें से आपने कौन सा बेच दिया? 10 वाला बेच दिया. तो जब भी आप सेल करते हो तभी आपको क्या बनाने का? वर्किंग नोट करना है. फॉरवर्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल का बना लो ये नोट. बट कितने का बनाओगे? 30 का कि 10 का? 10 का. So, working note number 4, calculation of profit or loss on sale. Calculation of profit or loss on sale. मिला? Now let's do this. मुझे बताओ, सबसे पहले how will you take a start? Original cost as on which date? 1st April 2004. कितने का आएगा ये? 10,000 की 30,000? 10,000. आपका ओरिजिनल कॉस्ट था 10,000. सो ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1404, दैट इज 10,000. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट आर सपोज्ड टू डू? डेप्रिशिएट इट फॉर हाउ मेनी इयर्स? 4, 5, देन 5, 6 एंड देन 6, 7 में बेचा है. तो करते जाओ इसको. लेस डेप्रिसिएशन for the year 4, 5 for how many months? 12 months. I think that is 1,000
You subtracted, you get how much? 9,000. बराबर है. This is WDV as on 1405. 1405. Did you sell it on 1405? No. So less depreciation for the year 5-6. Again for 12 months. That is what? 1,000. So you arrive at what? 8,000. This is WDV as on 1406. Is that right? 1406. Correct? Mila? Did we sell it on 1406? No. I sold it on 1106. So I'll further depreciate. Less depreciation. 6-7 for 6 months. तो पूरे साल का अगर 1000 है तो 6 महीने का 500 ही होगा. बट देखना मैं यहाँ पे 3000 नहीं लिख रहा हूँ. क्यों 1000 लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने पूरा नहीं बेचा, खाली पार्ट. तो 10,000 पर ही कैलकुलेट हो रहा है. और ऐसे ही कर सकते हो मेंटल कैलकुलेशन. 10,000 का 10% इज 1000. तो आपको ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है. तो 6 महीने का कितना होगा? 500 होगा. तो यू गेट व्हाट? WDV as on 1/10/06, that is 7,500. अब 7,500 का आपने कितने में सेल किया? 7 में. तो लेस सेल, that is 7,000. So you arrive at what? Loss on sale. Loss on sale, that is 500. Is it clear? Loss on sale is 500. How many items you record at the time of sale? 3. Number 1, buy debit. कितना है? करंट ईयर है कि सारा का सारा? करंट ईयर का. करंट ईयर का डेप्री रिकॉर्ड करना है सबसे पहले. करंट ईयर का डेप्री इज हाउ मच? 5. दूसरा क्या रिकॉर्ड करना है? कैश, बैंक और लॉस. तो एंट्री क्या होगी? कैश, लॉस टू मशीन. सो कैश टू मशीन एंड लॉस टू मशीन. इधर क्या आएगा एंट्री में? अभी बाय कैश और बैंक हाउ मच? 7,000. एंड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, दैट इज हाउ मच? 500 अगेन. And all the 3 entries will happen on which day? 1/10/06. समझा? सेल अलग क्या हुआ? मैंने पूरा नहीं बेचा है, पार्ट बेचा है. पार्ट बेचा है तो ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास 2 मशीन, जिसमें से एक बेच दिया है और एक पड़ा हुआ है. एक बेच दिया है और एक पड़ा हुआ है. बात समझ आई? इज दैट क्लियर? मिला? Moving ahead, did you buy any in this year? Yes. On the same day, so what entry you buy? Sir, credit पर. हाँ, क्रेडिट पे था. रॉकी मशीन्स, राइट. सो व्हाट विल राइट? टू कैश बैंक के जगह क्या हो जाएगा? Did you understand why it was on credit? Why it was on credit? How come it is on credit? नाम दिया है, पार्टी का नाम दिया है और कैश के बारे में कुछ नहीं दिया. पार्टी का नाम है और कैश के बारे में कुछ नहीं दिया. सो यू बॉट इट ऑन क्रेडिट. सो 2 रॉकी मशीन्स कितने का लिया? 20,000. दिस इज हैपनिंग ऑन व्हाट? 1/10/06. इज दैट राइट? सॉर्टेड ऑल ऑफ यू? अभी हो गया कि कर लू बैलेंस? नहीं. डेप्रीसिएशन 31st March 06 नहीं 7. 31st March 07 67. क्या करना बाकी है? ऑन विच मशीन? रिमेनिंग. बोथ की जस्ट 1. एक ही है ना अभी? पार्ट है उसका, उसको इग्नोर मत करना. ये 30 वाले में से आपने कितना सेल कर दिया है? 10 का. अभी भी कितना बचा हुआ है? 20 वाला बचा है ना, वो तो फुल ईयर यूज किया है. तो उसको क्या करना होगा? आपको डेप्रिशिएट करना होगा, है कि नहीं? तो पहले वाले में से आई विल नॉट कंसिडर 30 बट आई विल कंसिडर 20. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग मशीन इज 20.
का 10% for how many months? 12 months, that is 2000 and this one. अच्छा, आपने क्रेडिट पे खरीदा हो कि कैश पे? डज इट मेक अ डिफरेंस? डेप्रिसिएशन तो होना ही है. आप होंडा सिटी लोन पे लेके आओ कि कैश दे के लेके आओ, गाड़ी तो डेप्रिशिएट होगी ना. यूज कर रहे हो तो कोई भी ऐसे पैसे दिए ना दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो दूसरा वाला भी डेप्रिशिएट तो करना है, लेकिन 6 महीने के लिए. क्यों 6 महीना? 6 महीना वापरा तो टोटल डेप्री आएगा आपका 3000. एम आई राइट? हेलो. तो बैलेंस कितना आएगा बाय बैलेंस शीट? 33. डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट. एंड नीचे डेप्री अकाउंट में 2 बारी एंट्री आ जाएगी, टू मशीन क्योंकि 2 बारी डेप्री चार्ज हुआ है. एक सोल्ड का है और एक अदर मशीन का है. पीएनएल भी 2 बारी लिखूं? एक बार बाय पीएनएल. दिस विल बी 3500. टेल मी वन थिंग guys, how will you verify whether your balance is right or wrong? How will you verify this 33,000 whether it's correct or not? बताया था यार एक शॉर्टकट. क्या है क्या ये? 33 depreciated value of the remaining asset, right? Hello. How many machines do we have in that 33? 2. पहला 20, ये 20. करेक्ट. 10 वाला तो निकल गया. पहला 20 का और ये 20 का. ये वाला जो 20 था इसको 3 साल डेप्रिशिएट किया है. 2000. So 20 minus 6 is 14. Especially for CA. समझा? 20 minus 6 is 14. And ये वाला 20 को खाली 1000 से डेप्रिशिएट किया तो 90. तो 14 plus 90 30. समझा? पहला वाला 20 का डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितना हो गया? 14,000. दूसरा वाला 20 का हो गया 90. 90 plus 14 is 33. That's what your balance. That's your balance. बैलेंस का मतलब कुछ नहीं है, ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू, बुक वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो बैलेंस शीट में जाती है आपकी. पहले साल में बोला AC 50 का था, फिर 40 का, फिर 30 का, फिर 20 का. ये सबका डेप्रिशिएटेड वैल्यू. तो अलग क्या था, सब में आपने पूरा मशीन नहीं बेचा लेकिन पार्ट. बट डज इट मेक अ डिफरेंस इन योर कैलकुलेशन? नो. जस्ट अस्यूम देयर आर 2 assets instead of 1 and proceed with the same thing. Is it clear? Next sum is sum number